गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सो 10+1 ਲੈਕਚਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਮੈਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਿਮਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦ ਲਿਮਟ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਿਮਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਿਮਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਫਰੋਮ a to b, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a to b। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਫਰੋਮ a to b, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਮਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਕਰ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰੋਮ 6th to 8th, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਿਮਟ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਰੋਮ a to b। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, dx ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a to b, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ। ਅੱਜ ਲਿਮਟ ਦੇਖੋ, ਲਿਮਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲਿਮਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਰੂਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰੂਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ b ਆ ਗਿਆ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ b ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆਊਗੀ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਲੋਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ a,
तो x की जगह ते a पुट कर दो। तो रूल सिंपल याद रखियो, जदों भी किते लिमिट पुट करनी है तो बड़ा सिंपल जिहा रूल है। पहला किहड़ी वैल्यू पुट करनी है, अपर उपर वाली, फिर माइनस हुंदा है, फिर किहड़ी वैल्यू पुट करनी है लोअर नीचे वाली, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इसे का ही नाम है इंटीग्रेशन विद लिमिट। हुण सारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लै लो। ये बेसिक फार्मूला बेटा जिस तो तुहाडा शुरू हुंदा है कंसैप्ट, जिसनों असीं बोलते हैं इंटीग्रेशन। कि है तो जी इंटीग्रेशन है, बट इंटीग्रेशन किवें दी है, ये जी विद लिमिट इंटीग्रेशन है। बस इसे ही बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट। उम्मीद करदा ये गल आप सबनों क्लीयर हो गई होगी। हुण इस चीज़ का मतलब की है, तो बेटा असीं ना कुछ एग्जाम्पल लैके इस चीज़ को सॉल्व करांगे, फिर तुहानूं कहानी प्रॉपर समझ आउणी है कि ओके बड़ा सिंपल चीज़ है। हुण करना किवें, चलो आपां एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, फिर तुहानूं गल समझ आऊगी। देखो एग्जाम्पल की है, मान लो बेटा मेरे कोल x की पावर 3 है, मैनू बोलता सर इंटीग्रेट करना है, इसकी लिमिट है 0 तो लैके 2 तक। हुण देखो वही चीज़ है ना, इंटीग्रेट करनी x की पावर 3, बट इसकी लिमिट कितनी है फ्रॉम 0 टू 2। हुण देखो इंटीग्रेट किवें होनी है। सब तो पहला साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आ लो जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया सब तो पहला। हुण इक्वेशन एक्स की है तो की लिखांगे एक्स क्यूब, बट ये नाल की लिखांगे डी एक्स, यही बोलते हैं आप। हुण लिमिट इत्थे आऊ बेटा 0 तो लैके 2 तक। सब तो पहला लिखने का तरीका देखो विद लिमिट, क्लीयर है। हुण आ जाओ इंटीग्रेशन ते। रूल ये कहता है जो भी पावर है एक वधा दो, नवी पावर नीचे, पावर एक वधाती, नवी पावर नीचे। हुण इसकी लिमिट पता कितनी है, इसकी लिमिट इत्थे पुट होनी है बेटा 0 तो लैके 2 तक। सो क्लीयर। हुण पहला किहड़ी वैल्यू भरोगे, अपर उपर वाली, तो एक्स की जगह ते की आ गया 2, क्योंकि उपर वाली वैल्यू कितनी है 2, फिर माइनस। हुण किहड़ी लिमिट आऊगी, लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह ते की आ गया 0। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, पहला अपर लिमिट उपर वाली, फिर माइनस लोअर नीचे वाली, क्लीयर है। हुण 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना हुंदा है 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो साडे कोल की हो गया 16/4, क्लीयर। आ तो चलो 0 हो ही गया, तो 16/4 कितना आ गया, ये 4 आ गया जी, साडे कोल आंसर हो गया 4। हुण जो तुहाडे सामने है तो वही इंटीग्रेशन है जिहड़ी पहलां आपां पढ़ी सी, बस नवीं चीज़ की होगी, नाल इस ते एक लिमिट लगाती, इसनूं बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट। सो हुण इहदे नाल इंटीग्रेशन कंप्लीट है। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मैं तुहानूं होर करके दिखा देना ताकि परफेक्ट हो जाओ। फिर ये चीज़ साडे काम कित्थे आउणी है, आपां उहदी गल भी करांगे। हुण देखो बेटा की है, सपोज करो किसी ने आपां नूं कहा सर टी की पावर 4 है जी, और लिमिट हैगी जी 0 तो लैके 5 तक। चलो सर इंटीग्रेट करके दिखाओ, करते आ जाओ। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन टी दी है, तो दसो जे इक्वेशन टी दी है तो इस नाल की लगूगा डी टी आऊगा ना, बट इसकी लिमिट कितनी है 0 तो लैके 5 तक। पहला लिखने का तरीका देखो, लास्ट वीडियो दे विच असीं सारी इंटीग्रेशन सीखी हुई है, बस उन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। इतना क्लीयर है। हुण इंटीग्रेशन याद करो की हुंदी सी, कहने जो भी पावर है एक वधा दो, एक प्लस कर दो, कितनी होगी 5, नवी पावर नीचे, तो 5 नीचे भी आ गया। हुण इसकी लिमिट कितनी है, तो इसकी लिमिट होगी 0 तो लैके 5 तक, क्लीयर है। अगे आओ, पहला किहड़ी वैल्यू आऊ, अपर, तो टी की जगह ते की आ गया 5, अपर वैल्यू होगी। हुण माइनस किहड़ी आऊगी, लोअर, तो टी की जगह ते की आ गया 0। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लीयर है। हुण जे इहनूं सिंपलीफाई करिए, देखो आ तो 0 ही हो गया,
एक 5 कैंसल हो के 5 की पावर कितनी होगी 4 होगी। हुण 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना हो गया 625। आ 625 हो गया, 0 ही हो गया। ਇਹਦਾ मतलब सॉल्व करन तो बाद कितना आ गया 625। लो हुण इंटीग्रेशन विद लिमिट दे दो क्वेश्चन मैं तुहानूं करके दिखाते, इन्हां दोनों के स्क्रीनशॉट लै लो। स्क्रीनशॉट लैण तो बाद एक दो बार तुसीं इहनूं आप करके देखियो, कोई डाउट होया कमेंट बॉक्स अंदर या तुसीं ग्रुप दे विच मैनूं पुछ सकदे हो। सो क्लीयर, तो हुण इह साडा कंसैप्ट कंप्लीट है। हुण इस कंसैप्ट का साडी फिजिक्स दे विच बैनीफिट की है, असीं इहनूं क्यों पढ़ रहे हैं, कोई वजह तो होगी। देखो हुण कमले तो असीं है नहीं कि बेवजह ही सब कुछ पढ़ी जा रहे हैं, और साइंस एक ऐसा सबजैक्ट है इस बेवजह कुछ भी नहीं है। जो असीं करना हुंदा ना इन फ्यूचर, ਉਹਦੀ फाउंडेशन ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਯੂਨਿਟ 2 ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। बट ये यूनिट 2 ना 9th क्लास के नाल काफ़ी हद तक जुड़िया हुआ है। इस करके जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश कर रहा बड़े आराम नाल समझ आ जूगी। पहलां आपां 9th क्लास नूं याद करिए। तो 9th क्लास दीआं कुछ गल्लां आपां याद करदे हां, किहड़ियां देखो। 9th क्लास दे विच एक फार्मूला हुंदा सी, कहंदे V = U + AT। सब ने फार्मूला देखिया होना 9th क्लास। इहदे अंदर जिहड़ा तां U हुंदा सी, इह हुंदी सी इनीशियल वेलोसिटी, मतलब जदों टाइम 0 स्टार्टिंग वाला टाइम, उदों की वेलोसिटी नूं U कहंदे सी इनीशियल वेलोसिटी। जिहड़ी हुंदी सी V, ये हुंदी सी फाइनल वेलोसिटी। ये उदों की हुंदी सी जदों टाइम कितना हुंदा सी T हुंदा सी। मतलब टाइम तो चेंज हुंदा है 0 तो लैके T तक, वेलोसिटी चेंज हो जाती सी U तो लैके V तक। 9th क्लास च भी कहने हुंदे सी एक्सलरेशन पता किन्नी हुंदी है, किन्नी कहंदे dV/dt। हुण जिहड़ियां बेटा चार गल्लां मैं लिखियां ने ना बोर्ड दे उपर, ये चारों 9th क्लास दीआं ने। कहंदे V हुंदा U + AT, स्टार्टिंग दी वेलोसिटी U हुंदी है, एंड वाली वेलोसिटी V हुंदी है। स्टार्टिंग दे टाइम 0 हुंदे ने, एंड वाले टाइम T हुंदे ने। एक्सलरेशन दा फार्मूला हुंदा है dV/dt। मतलब कुछ क गल्लां ने जिहड़ियां आपां ऑलरेडी डिस्कस पहलां कर चुके हैं। हुण आपां अजे देखना भी इंटीग्रेशन का फायदा की है। हुण देखो बेटा फायदा की है, जे कोई सानू कहे आ इक्वेशन प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ कि V हुंदा U + AT, तो देखो इंटीग्रेशन विद लिमिट साडी किवें हैल्प करती है। असीं इत्थों शुरू करते हैं। सानू पता एक्सलरेशन कितना हुंदा है dV/dt, 9th क्लास पढ़ के आए हैं। दसो जे इत्थों dV फाइंड कर ला कितना आ जाऊगा, ADT हो जाना। तो आप कुछ नहीं किया, dV नूं सिंपली फाइंड किया, तो जिवें dV नूं फाइंड किया कितना हो गया ADT हो गया। हुण बेटा एक काम करो, दोनों साइडां इंटीग्रेट कर दो। आ dV हो गया, कॉन्सटेंट टर्म बाहर आ गई, आ हो गया dt। हुण देखो टाइम तो चेंज हुंदा है 0 तो लैके T तक, टाइम हैगा 0 तो लैके T तक। वेलोसिटी चेंज हुंदी है U तो लैके V तक, तो टाइम हैगा 0 तो T, वेलोसिटी हैगी U तो V। हुण देखो ये किहड़ी इंटीग्रेशन है, होगी ना विद लिमिट। हुण ये फायदा किवें करदी वो देखियो। देखो dV नूं इंटीग्रेट किया V, कल मैं सिखाया सी dx x हुंदा है, dy दा y हुंदा है, dt दा t हुंदा है, तो dv दा v होऊगा। एवें इधर देखो आ dt है, तो इहदी इंटीग्रेशन कितनी होऊ t। हुण लिमिट ते आईए, इत्थे लगदी है लिमिट। कहंदे वेलोसिटी हुंदी है U तो लैके V तक। अच्छा टाइम हुंदा है 0 तो लैके T तक, तो वेलोसिटी हुंदी है U तो लैके V तक, टाइम हुंदा है 0 तो लैके T तक। इन्ना क्लीयर है। अगे आओ, पहला किहड़ी लिमिट आऊ अपर, उपर वाली कितनी है V, अज दी वैल्यू इत्थे पुट की है माइनस, फिर किहड़ी लिमिट हुंदी है
लोअर नीचे वाली कितनी है u, अपर लिमिट माइनस लोअर, अगे आ जाओ अपर कितनी है t, आ लो जी t, माइनस लोअर कितनी है 0। तो मुकदी गल ये होगी v माइनस u किहदे इक्वल हुंदा है at दे। हुण माइनस u उधर जाके की हो जू प्लस, तो बोलो फिर v कितना हो गया u प्लस at। आ लो बेटा हुण एक तो इनू देखो, एक देखो इनू, सेम ने ना। हुणे जो मैं तुहानूं करके दिखाया है ये नहीं है भी तुसीं ये सीखना है, सीखांगे तो आप यूनिट 2 के अंदर, क्योंकि उस तो पहला असीं बहुत कुछ होर भी पढ़ांगे। ये तो जस्ट मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे के समझाई है कि तुहानूं ये चीज़ पता होनी चाहिए है कि जिहड़े बेसिक टूल असीं सीख रहे हैं आखिरकार फिजिक्स दे विच साडे काम किवें आउणे ने। तो उसी एक एग्जाम्पल दित्ती है। हुण अपने 3 बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला बेसिक आपां कीता सी डेरीवेटिव, जिन्ना सानूं चाहिए कंप्लीट है। सैकंड आपां कीती सी सिंपल इंटीग्रेशन, जिन्नी आपां नूं लोड़ है वह भी कंप्लीट है। थर्ड आपां कीती सी इंटीग्रेशन विद लिमिट, तो जिन्नी वह भी अपनी कंप्लीट है। हुण 3 बेसिक्स ने जिहड़े अपने ऑलरेडी डन हो चुके हैं। हुण चलदे हैं बेटा बेसिक नंबर 4 ते। चौथे बेसिक के उपर आपां डिस्कस करते हैं। देखो की है जिहड़ा चौथा बेसिक है ना, वो बड़ा वधिया बेसिक है। और एक चीज़ मैं इत्थे होर क्लीयर करा, जदों तुसीं अपनी बुक खोलोगे तो ना बुक के उपर बेसिक बड़े अजीबो गरीब तरीके नाल दिते हुए ने। इंटीग्रेशन ते डेरीवेटिव 10+2 के मैथ दे विच है, और सब तो वध स्कोर है 60 नंबर की है, 60 मार्क्स की। जे डेरीवेटिव ते इंटीग्रेशन नूं सीखना है 6 तो 7 महीने चाहिए ने। बट एक चीज़ मैं दोबारा क्लीयर करा कि असी डेरीवेटिव ते इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे, असी सिर्फ ओनी डेरीवेटिव ते इंटीग्रेशन ही सीखनी है जिन्नी सानू फिजिक्स दे विच चाहिदी है, ओनियो, उस तो वध नहीं। एक चीज़ याद रखियो, फाइनल एग्जाम दे विच ना कोई इंटीग्रेशन का ना कोई डेरीवेटिव का सानू फिजिक्स दे विच क्वेश्चन कोई नहीं आना। बट यह है भी जदों असी फिजिक्स नूं पढ़ना है उहदे च सानू लोड़ पैंदी है इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन या डेरीवेटिव की, बस असी ओनियो सीखनी है। कई बच्चे मैं देखा की करते हैं, किताब खोलणगे इत्थे डेरीवेटिव भी बहुत दिता पिया, आपां तां थोड़ा जिहा कीता, बिल्कुल थोड़ा आपां करना ही है। असल दे विच जिहड़ा बेसिक है ना, ये तुहाडी बुक का 0 चैप्टर है। जे तुसीं +1 का सिलेबस खोल के देखो ना, सिलेबस दे विच किते भी नहीं लभना। सिलेबस तुहाडा यूनिट 1 तो शुरू हुंदा है, पेपर भी यूनिट 1 तो लैके यूनिट 10 तक ही आना है। यह 0 चैप्टर बेसिक्स, तो ये गल का खास ख्याल रखना है। कई बार बच्चे इस चीज़ को गलत समझ आते हैं, क्योंकि हाले उन्हें बेचारे ट्रेन तो तुसीं हुंदे नहीं। सो आपां ओनी इंटीग्रेशन ओना डेरीवेटिव ही सीखना है जिन्ने कुछ दी सानू लोड़ है। एवं जो थर्ड बेसिक है वो है, हुण जिवें देखो थर्ड बेसिक अपना है बाइनोमीअल थ्योरम। ये बाइनोमीअल थ्योरम की हुंदी है आपां उहदी गल भी करांगे, बट उस तो पहला मैं 2 गल्लां क्लीयर करदा। बाइनोमीअल थ्योरम मैथमैटिक्स दे विच भी आऊ, बाइनोमीअल थ्योरम फिजिक्स दे विच भी आऊ। मैथमैटिक्स दे विच ना इसका बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, ये बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन है तो बहुत सारे क्वेश्चनस ने। फिजिक्स दे विच कुछ भी नहीं है, गल्लां ही 3 ने। आपां नूं सिर्फ 3 गल्लां दी लोड़ है। किहड़ियां? पहला ध्यान नाल सुणियो, फिर 2 क्वेश्चन मैं तुहानूं करके दिखाऊंगा, तुहानूं समझ आ जूगी बाइनोमीअल दा सानूं की लोड़ है। देखो पहली गल, बाइनोमीअल थ्योरम दी फॉर्म किवें दी हुंदी है। देखो किते तुहानूं एवें दा कुछ लिखिया मिले कि 1 प्लस समथिंग ते उहदी पावर होवे n, इहनूं कहंदे ने बाइनोमीअल। बाई दा मतलब हुंदा 2, नोमीअल का मतलब की होंदा नंबर। हुण तुसीं कहोगे जी किवें, एक मिनट वेट करो समझाउणा। इत्थे एक शर्त यह है, कंडीशन यह है फिजिक्स अंदर कि आ वाली जिहड़ी वैल्यू है ना एक्स की, ये स्मॉल होनी चाहिए है। तो कंडीशन की है, वैल्यू की होनी चाहिए है स्मॉल। 1 प्लस एक्स की पावर n, पर जो भी एक्स की जगह पर लिखे स्मॉल होना चाहिए। तो रूल ये कहता है कि असीं एवें लिख सकते हैं 1 प्लस मतलब जोड़ा n है ना वो इत्थे आके मल्टीप्लाई हो जाना है nx। लो बच्चों नज़र मारो, 1 प्लस एक्स की पावर n किहदे इक्वल हुंदा है 1 प्लस nx से। बट कदों? जदों x की वैल्यू स्मॉल होवे। ये वो बाइनोमीअल थ्योरम है जिहदी सानूं फिजिक्स दे विच लोड़ पैंदी है। हालांकि तुहाडी बुक ते बड़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, बट नहीं, आपां उन्नी पढ़नी है जिन्नी सानूं लोड़ है, क्योंकि किहड़ा सिलेबस दे विच है ना पेपर च आउणी है। सिर्फ तुहानूं लोड़ पैनी है इहदी, कित्थे लोड़ पैनी है मैं वो भी करके दिखाऊंगा। पूरी फिजिक्स च सिर्फ एक दिन लोड़ पैनी है, बट पहला मतलब समझो की है। हुण देखो ये चीज़ काम किवें आउंदी है।
मान लो बेटा मैनू कोई कहे सर 1.0002 और इसकी पावर है जी 13, सर सॉल्व करके दसो कितना आया। देखो 1.002 पावर कितनी है 13, सर सॉल्व करके दसो जी कितना आया। चलो हुण 1 मिनट दिता तुहानूं, करियो सारा कैलकुलेशन। 1 मिनट लै लो, मैनूं कोई काली नहीं। कॉपी पैन ओपन कर लो, कॉपी पैन ओपन करके कर दो शुरू कैलकुलेशन, देखते हैं की करते हो। 1 मिनट है बेटा तुहाडे कोल। आ स्टेटमेंट नोट करो जिहड़ी मैं हुणी हुणी लिखी है। 1.0002 पावर कितनी है 13। बस कुछ नहीं करना, इनू सिंपलीफाई करके इनू सॉल्व करके मैनू आंसर कढ़ के दे दो भी आंसर आउंदा जी। दैट्स इट, इन्ने काम है। हाँ जी, सोच लिया हो गया आंसर? नहीं सर इन्ना छेती थोड़ा आंसर आऊगा जी। हुण सर इनू असीं किन्ने बार मल्टीप्लाई करांगे? 13 बार, 13 टाइम। देखो 13 बार मल्टीप्लाई करन तो बाद आंसर आऊगा नहीं बेटा। हुण असीं ना इसनूं सॉल्व करांगे 1 सਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, विदिन 1 ਸੈਕਿੰਡ। सिर्फ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਊਂਗਾ मैं सॉल्व करने ਲਈ। कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे ना, ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ यूज़ करांगे? ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂ 1 + 0.0002 और इसकी पावर कितनी होगी 13। यही है देखो। हुण एक तो बेटा इनू देखो 1 + x, एक इनू देखो 1 + आ की हो गया x हो गया ना। ਇਹਦੀ पावर n है, ਇਹਦੀ पावर कितनी है 13। मैं एक गल कही सी आ वैल्यू की होनी चाहिए है, स्मॉल होनी चाहिए है। आ देखो क्या सी ना, ये स्मॉल हैगा। बस जे स्मॉल हैगा पावर ने इत्थे की हो जाना मल्टीप्लाई। आ देखो आड़ी 13 वाली पावर है वो इत्थे की हो जू मल्टीप्लाई। साढ़े को हो गया 1 + 0.00। हुण 13 × 2 कितना आऊगा 26। तो बेटा कितना बन गया 1.0026। हुण जो तुहाडे सामने है दसो ये किहड़ी थ्योरम है? ये है बाइनोमियल थ्योरम। सो नज़र मार लो, सलूशन तुहाडे सामने पे है और इस सलूशन ते कोई डाउट है तो पुछो। क्लीयर है बच्चे? चलिए अगे चलो। एक क्वेश्चन आप इसका होर करते हैं, फिर तुहानूं पूरी कहानी समझ आ जू, फिर मैं दसूँगा फिजिक्स से यूज़ किवें होना है। मान लो बेटा किसी ने मैनू कहा सर 1.0009 और इसकी पावर है जी सपोज करो 6, इनू सॉल्व करो। देखो सॉल्व किवें होना है। असीं इनू की लिखांगे 1 + 0.0009 बट इसकी पावर कितनी है 6 है। आ वैल्यू देखियो की है, ये वैल्यू हैगी स्मॉल। क्लीयर? हुण इन्हें इत्थे आके की हो जाना है मल्टीप्लाई। सो 1 + 0.00 हुण 9 × 6 कितना हुंदा है 54 हुंदा है ना। तो साढ़े को हो गया 1.0054। लो बेटा ये बाइनोमियल है जिहदी सानू लोड़ है। तो हुण याद रखियो कि ते एवें दी फॉर्म होवे 1 + x की पावर n बट x की वैल्यू की होवे स्मॉल होवे, तो n की पावर इत्थे मल्टीप्लाई हो जाती है। बस इसे नूं कहंदे ने बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है जिहदी मैनूं फिजिक्स दे विच लोड़ पैनी है, तो इस तो वध आपां नूं किते लोड़ ही नहीं पैनी। हुण तुसीं कहोगे सारे समझाओ जी ਇਹਦੀ ਲੋੜ कित्थे पैनी है। तुसीं कहा सी सर शुरू दे विच सारी फिजिक्स सानूं एक बार लोड़ पैनी है। लो दस देना एक बार लोड़ किवें पैनी है। देखो जदों फिजिक्स नूं पढ़ांगे इस 'च एक यूनिट 6 आऊगा, उसका नाम होगा ग्रैविटेशन। ग्रैविटेशन दे विच ना एक फार्मूला एवें बन के आऊगा कि G' इज इक्वल टू 1 + h/r, ਇਹਦੀ पावर इत्थे 2 आऊगी माइनस इंटू G। एवें दा एक फार्मूला आऊगा। हुण ये फार्मूले दे विच जिहड़ी आह वाला कंसैप्ट है ना, आह वाला इत्थे लगदी है बाइनोमियल। देखो किवें लगदी है। पहलां असीं ये लिखदे हां कि बॉडी की हाइट बहुत थोड़ी है किहदे तो रेडियस तो, क्योंकि अर्थ का रेडियस हैगा 6400 किलोमीटर। याद भी रखियो ये, कोई सानू पुछे अर्थ का रेडियस कितना तो 6400 किलोमीटर है। ठीक, किसी भी बॉडी की जिहड़ी हाइट है वो रेडियस से कंपैरेटिवली बहुत छोटी होंदी है। जिवें अर्थ की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है, माउंट एवरेस्ट सब ने सुनी हुई है।
चलो माउंट एवरेस्ट ही ला लो, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848 मीटर है, मतलब अप्रॉक्स कितनी होगी 9 किलोमीटर होगी। हुण इनू ध्यान नाल देखो 6400 के कंपैरेटिवली 9 की है वैरी वैरी स्मॉल, मतलब हाइट थोड़ी है रेडियस नाल। हुणे दसो जे एच आर तो छोटा है तो मतलब जिहड़ा एच अपॉन आर है ये तो एक तो बहुत छोटा हो गया, बस एच अपॉन आर आ पे है, सानू पक्का पता लग गया टर्म की है, ये तो जी स्मॉल है। हुण याद करो बाइनोमीअल, जे 1 प्लस एक्स की पावर एन दे विच आ स्मॉल होवे तो पावर इत्थे की हो जाती है मल्टीप्लाई, तो बस यही आपां करना है, जिहड़ा -2 है ना वो इत्थे मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी बेटा सारा सेम है। ये भी वो चीज़ है जिन्हों हाले आप इत्थे पढ़ना नहीं, बस मैं तुहानूं ये समझा रहा सी कि जिहड़ी आ पावर है ये एक जगह ते एवें मल्टीप्लाई होऊगी। ये बाइनोमीअल का यूज़ है, आपां कित्थे पढ़ांगे यूनिट 6 दे विच पढ़ांगे। तो बाइनोमीअल दे विच कुल मिला के जिहड़ी गल याद रखनी है वो सिर्फ इन्नी को याद रखनी है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन की फॉर्म होवे, एक्स उपर जिहड़ी वैल्यू है वैरी वैरी स्मॉल होवे, तो जिहड़ी पावर हुंदी है ना वो अगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसनूं बोलदे ने बाइनोमीअल, वो बाइनोमीअल जिहदी सानूं फिजिक्स दे विच लोड़ पैनी है। हुण जदों तुसीं अपनी बुक खोलोगे ना बाइनोमीअल की भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बुक्स वाले पा देंदे ने, क्योंकि जिहड़े बुक्स वाले ने ना असल प्रॉब्लम की है मैं तुहानूं ये भी क्लीयर करा। अज ग्रुप दे विच एक बच्चा पुछ भी रहा सी सर बुक किहड़ी लई है। देखो बेटा मैं एक गल तुहानूं सिंपल समझाउणा, जे तां तुसीं मेरे वल्लों रिकमेंडेशन लैनी है तो मैं हमेशा रिकमेंड करदा NCERT बुक्स। हालांकि NCERT ਦੀਆਂ बुक्स बड़ियां लिमिटेड जे मटीरियल नाल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बट NCERT बुक्स ਨੂੰ मैं रिकमेंड क्यों करदा उस दे पिछे 2-3 ਵੱਡੇ रीजन ने। सब तो पहला रीजन ये है कि NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ गलती होने के चांस बहुत रेयर ने, रेयर मतलब है ही नहीं। सैकंड मान के चलो कोई मिसटेक हो भी जाती है तो उस बुक की वजह नाल एग्जाम के थोड़ा कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो तुसीं उसनूं चैलेंज कर सकते हो। जदों भी थोड़ी कोई गलती एग्जाम की चैलेंज होनी है ना तो जिहड़ी बोर्ड की टैक्सट बुक होंदी है उहदे नाल ही कंपैरिजन होनी है आलवेज। तीजी गल NCERT बुक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल पईआं ने, सस्तियां भी ने। देखो रिकमेंडेशन तो मेरी यही है। हाँ इस तो इलावा होर पबलिशर बथेरे ने, मन के चलो तुहाडे कोल मैं नाम नहीं लै रहा किसी पबलिशर का, मन के चलो तुहाडे कोल एक फिजिक्स की बुक पई है। हुण इह चीज़ नूं मेरी गल ध्यान नाल सुणिओ क्योंकि बुक्स भी बहुत कन्फ्यूज़ करदियां ने, खास तौर पर तुहाडे वर्गे बिगनर्स नूं। की है मान लो तुहाडी ना बुक पई है तो बुक के सब तो पहले पेज से जाओ तो जाके ना एक चीज़ देखो ये बुक किहनां लई बनी है। तो जदों तुसीं फ्रंट वाला पेज खोलोगे ना उत्थे की लिखिया होगा PSCB CBSE पंजाब हरियाणा राजस्थान करनाटका मेघालय मणिपुर सिक्किम गोवा एटसैट्रा, पता ही नहीं किन्नियां क स्टेटां दे नाम उत्थे लिखे होणगे। हुण बेटा जिन्नियां स्टेट्स ने सब दे आपो अपने स्टेट बोर्ड ने, हालांकि सारे दावा करते हैं कि असीं NCERT नूं फॉलो करते हैं पर फिर भी किते ना किते फर्क है। हुण असीं बेटा पंजाब दे बोर्ड नाल डील करते हैं या CBSE बोर्ड नाल डील करते हैं तो इन्हां दोनों का जो सिलेबस है ना असीं उहदे अकॉर्डिंगली ही मूव करांगे। सो बच्चे सारे ध्यान नाल गल सुण लिओ कि जिहड़ी तुसीं प्राइवेट पबलिशर की किताब लै लई उहदे ते जो लिखिया होया वो सारा नहीं पढ़ना हुंदा। जिन्ना तुहानूं सिलेबस देवांगे ना सिर्फ उन्ना ही पढ़ना, उससे एक्सट्रा कुछ नहीं पढ़ना। मटीरियल तुहानूं बहुत छेती अवेलेबल करवा दिता जाऊगा। बस ये सब तो इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा बच्चा सही सिलैक्शन कर गया ना मटीरियल की बस वो कामयाब है। सो अज तुसीं हुण इन्ना ही करो तो अपने 3 बेसिक हो चुके हैं। डेरीवेटिव अपना हो गया, इंटीग्रेशन अपनी हो गई, इंटीग्रेशन तो बाद आपां कर चुके हैं बाइनोमीअल थ्योरम। सो ये 3 टॉपिक्स ते पूरे परफेक्ट हो जिओ। कल नूं असीं एक टॉपिक करांगे ट्रिग्नोमैट्री। ट्रिग्नोमैट्री हालांकि तुसीं पहलां पढ़ी भी हुई है, मैं तुहानूं एक होमवर्क भी दे रहा। कल की क्लास तो पहलां तुसीं मैनूं चाहे गूगल सर्च करिओ, चाहे किसी बुक तो, चाहे किसी टीचर की हैल्प लिओ, जिवें तुहानूं ठीक लगे। तुसीं मैनूं सिर्फ ये दसना होगा कि ट्रिग्नोमैट्री वर्ड का मतलब की हुंदा है। वट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रिग्नोमैट्री। ये तुहाडा होमवर्क है। सो थैंक्स ऑल, मिलते हैं बेटा कल नैक्सट वीडियो।